A very good evening to all and a warm welcome to our first episode of the We Talk. We are thrilled to finally kick off and bring forth this platform where the distinguished voices of Venus Remedies Limited come together for captivating debates. I am Manu Singh and it's a privilege for me to be the moderator of these insightful conversations that may lead up to some fiery debates. So, our topic for today is the PLI scheme. Venus has recently received a significant amount of Rs 10 crores as part of the incentive under Indian government's PLI scheme. This remarkable milestone required a lot of efforts from our end. So first of all, a huge round of applause and many congratulations to all Venusians for this achievement. So joining us today are our esteemed panelists and core members of Venus's PLI committee, Mr. Pawan Sharma, Mr. Ajit Kapoor, Mr. Mukesh Kumar and Mr. Varun Kumar. They played a very crucial role in navigating the complexities of this scheme for us to secure this approval. So their insights and expertise are invaluable for understanding both the challenges and opportunities presented by this scheme. So being a layman, I feel that government schemes can be quite challenging and PLI being a relatively new scheme must be quite difficult. So I'm assuming this would not have been a piece of cake for you as well. So was this entire journey even worth it? But before we get into that, I would request Mukesh sir to please guide us on what is the PLI scheme and how Venus got to know about this scheme. So PLI scheme is an initiative of Government of India with the motive of Atmanirbhar Bharat, self-reliant Bharat. So in this particular scheme, Government of India notified about this scheme on March 2021, and after that guideline of this particular scheme are notified in June 2021. And we have applied in this scheme and got selected among 255 applicants, and the selected members are only 55. So this is a great process, learning and policy initiative of Government of India, and becoming part of it and getting selected in this particular scheme is a major achievement for us. That's great, right sir? Yeah. It is in fact a very good achievement for us. What do you say about the process? Was it strenuous? Was it lengthy? How was your experience in that? As you know that in all the government schemes, the process is actually defined, but there are certain queries remains unanswered. We get to know the government guidelines and we study all these guidelines and try to comply the guidelines. But there were still certain unanswered queries. We time to time contacted the PMA and the Department of Pharmaceutical in this regard, and they give us timely replies. We can say that initially it was some issues were problem, but later on all the queries were clarified by the government officials. Now it was clear, and we applied this for this scheme in August 2021, and we got the approval in December 2021. Actually, there were three categories for the companies, three categories of the companies, where the criteria was that A, B, and C. The first category was above 5,000 crore turnover. The second category was below than 5,000 crores, and third category are below than 500 crores. We were in the C category, and for this so many companies applied, and a total 11 companies were selected, and Venus was fortunate one of that company who was selected under C category. There were three eligibility criteria. Number one, that is the three eligibility criteria that were considered for this eligibility. One was that we have to make the investment in last 10 years. Second was MAs or dossiers granted to the company, and third one was the GMR, Global Manufacturing Revenue. In percentage term, we can say that in case of investment, 30% was the criteria. 30% marks were considered from this category, and 30% was for the MAs granted, and 40% was GMR. In case of investment, we were having a huge amount of investment in past 10 years. That helped us. I think we got the
maximum numbers under this eligibility criteria, and second was MBAs. Here there were some challenges. We came to know that we can only apply the MAs which are in our name or in name of our subsidiaries. But later on it was clarified that if any MAs are granted to our distributors or associates and the manufacturing site is Venus, then we can also consider that MAs. And third was global manufacturing revenue. And in case of revenue, manufacturing revenue, we were behind some of the companies, but in first two categories, I think we got the maximum numbers. Under C category, where 11 companies were selected, total incentive outlay was 1,750 crore, and it was to be given in the next 6 years. We were eligible for incentive of ₹50 crore, and it was further mentioned that if some undistributed incentive is remained, then we can further get 20% of the total eligible incentive. That means 50 crore plus 20%, that means 60 crore. 60 crore was we can get from this. So, Pawan sir, do you think that this division of expenses, the distribution of this amount is fair enough? See, actually, as Mukesh ji said, that it was an Atmanirbhar scheme. So, in the criteria, I mentioned, Kapoor sir, that MAs and like sales and the investment. So, Government of India was just, they want to have the idea that how worth are the companies, have they invested enough money for their future, they are going to back these companies. And yes, 10 crore in a year is a handsome amount for the investment and for the future growth. So I feel it was a good scheme, and it will definitely going to help the progressive India. But sir, I've heard that there's some tax deduction also in this. Would you like to weigh in, sir, regarding this? Yes, there was a standard income tax deduction on that. We have paid almost 25%. It would have been better if it is tax free, but nevertheless amount is good. But like I said, it would be better if this was not under income tax deduction. Yeah. So my question still remains, was it worth it if you're saying that we are given the amount of 10 crores but still we have there's a deduction in that? अगर गवर्नमेंट ही हमें एक स्कीम दे रही है और हम गवर्नमेंट को ही उसमें से एक अमाउंट वापस कर रहे हैं तो वो कैसे फेयर है सर? I think government should think over it, and it should be, if the government is giving us the some kind of incentive or for investment, we have before this point I would want to clarify that for being eligible for this 10 crore incentive per year, we have to make investment of rupees 10 crore itself, and thereafter in the subsequent year we have to make we can claim the incentive on the sales amount, on the 7% growth, year growth of the 7%. If we have to make the 10 crore investment, and here we are getting 10 crore, but on getting 10 crore incentive we have to pay 25 cent as a tax. That is, I think, not fair. Government should rethink it, and we may be reimbursed with the total investment made, that is 10 crore out of the as a shape of incentive. That is, I think, government should reconsider it. And second point is that government has given us, we think, 7% growth. In many cases, in some cases, in some years, it may be possible that we may not get 7% growth. So I think government should also give relaxation in case of percentage sales growth. Basically, this is not an incentive. This is just reimbursement of, but we have already invested. तो हमने 10 करोड़ इन्वेस्ट किया है, जिस पे गवर्नमेंट ने कहा कि हम 10 करोड़ आप जो इन्वेस्ट करेंगे उसका हम रिम्बर्स करेंगे. बट इन दिस केस दे हैव रिम्बर्स विद टैक्स. Actually, the plan or structure of this scheme is only that government is going to be hand holding of companies, pharma companies, and they want to make a manufacturing structure in the country that we can make complex generic drugs, patented drugs, innovative drugs,
and all these type of drugs. So this is a hand holding scheme from Government of India that manufacturers, pharma manufacturers, which are now at present they are manufacturing only generic drugs, but now they are after this scheme, this hand holding and this incentive, by investing this particular incentive, they can make a higher type of drugs. That may be patented drug, that may be phytopharmaceuticals, that may be biosimilar drugs, that may be complex generic drugs. So this is the motive behind this scheme. सर अगर प्रोडक्शन बेस्ड इंसेंटिव, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव की वजह से हम एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स पे इंसेंटिव हमें मिल रहा है, बट डोंट यू थिंक दिस ड्राइव्स आवर motive, the focus of our production capacity towards just producing products that are linked to the incentive, and we are neglecting, probably will be This neglecting. is a good question, but they have designed the whole guideline policy in a scheme. In this particular scheme, they have created categories of drugs. They have given 10% incentive for the complex generic, phytopharmaceutical and patented drugs, which is their dream to make hand holding for the companies for that particular category. At present, around 80% of the products which are eligible in this particular scheme from all the applicants are remain in category 3, which earn only 5% of incentive. So they want that all of these products move to category 1. That may be, Basically, idea government का क्या है? They want to promote not even generic drugs, but जैसे मुकेश जी ने बताया, गवर्नमेंट ये चाहती है कि आप ऐसे कॉम्प्लेक्स जेनरिक बनाएं. सी बेसिक आइडिया ऑफ द गवर्नमेंट टू लॉन्च दिस स्कीम वाज आत्मनिर्भर. सो फार्मा के सेगमेंट में हम लोग वर्ल्ड पे टॉप पे आए. दिस वाज द आइडिया. तो उसमें भी फर्दर गवर्नमेंट ने कैटेगरीज, इंसेंटिव कैटेगरीज को, प्रोडक्ट्स को कैटेगराइज कर दिया. 10% आपको किस वाले प्रोडक्ट पे मिलेगा जो अदर देन जेनरिक हैं. जनरिक के लिए तो वो 5% दे ही रहे हैं. सो हैंड होल्डिंग तो है ही गवर्नमेंट का, बट फॉर एक्स्ट्रा इंसेंटिव किस चीज पे मिल रहा है? जो also सर वही चीज तो आपका फोकस ड्राइव करेगी ना कि आप ज्यादा इंसेंटिव लेने की कोशिश करेंगे. एग्जैक्टली. आप निग्लेक्ट तो शायद कर ही दे जो जेनरिक प्रोडक्ट्स, हम जो यूजुअली प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उसकी जगह हम फोकस करेंगे कि जो इस इंसेंटिव को हमें actually this is a life cycle of pharma. Actually, first of all, we become the pharmacy of the world in terms of generic drugs. Now we are enough production houses, manufacturing houses which are producing a lot of generic drugs and supplying for whole the world. But now we have to take the innovation race also. We have to participate in this particular race. So we have to move in this direction also to make patented drug, innovative drugs, and this complex generics. This should be there. So was this the first scheme by the government regarding this particular Actually, area? this type of scheme in production, which is linked to production of pharma incentive. This is this The kind of first scheme is first time. Any other related schemes? Before this, other governments are incentivizing in other in type terms of things. rate or something like that, but related to Your production, MEIS scheme is there. I mean and that is for export and to promote Yeah. export, but this scheme meant for the manufacturers. So is it sufficient to just promote the production of products specifically to just develop the entire pharma sector? इससे पहले उन्होंने एक और स्कीम लॉन्च की थी, दैट वाज फॉर APIs. This was is for finished goods. The PLI one was for APIs. Yeah. It is bulk drug manufacturing. And after this, government is also launching for the research projects. That is PRIP, production promoting research incentive in pharmaceutical and medtech sector. So they are also there's a bucket of schemes from Government of India. First of all, they are just for the API. After that, for formulations, and now they are promoting for the research. So whole ecosystem is made for the innovation and the hand holding of the whole pharma sector. तो सर जो ये गवर्नमेंट की स्कीम है, इनका एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव है, जैसे आपने बताया कि प्रोडक्शन इंप्रूव करना है जैसे, तो हाउ मच इंसेंटिव इज इनफ फॉर अचीविंग दिस गोल गवर्नमेंट का, जो अभी इन्होंने करंट वैल्यू रखी है, डू यू थिंक इट इज इनफ?
देखिए मैडम, एक्चुअली इनफ कुछ नहीं होता, पर गवर्नमेंट की एक बहुत अच्छी स्कीम आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए गवर्नमेंट की स्कीम थी, जिसमें हमें सबक लिया कि कोविड के दौरान हमें जो दिक्कतें आई, हमारी जो देखा गया, हमें महसूस हुआ कि हमें हमारी जो डिपेंडेंस चाइना के ऊपर ज़्यादा है, ना सिर्फ API के लिए, पर जो API बनता है उसके लिए जो की इंग्रीडियंट्स आते हैं वो भी चाइना से आते हैं। तो इस प्रोडक्शन को हमें बढ़ाने के लिए और आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई थी। तो पर हमें ये हमारी जैसे साइज़ की कंपनी के लिए अगर 50 करोड़ या 60 करोड़ कंपनी गवर्नमेंट दे रही है, तो हमारे लिए मेरे को लगता है कि हमें हमारी जो ग्रोथ है वो स्पीड अप हो जाएगी। एनफ कुछ हमारे को 100 करोड़ भी आ जाएगा तब भी हो सकता है एनफ ना हो, बट 50-60 करोड़ से हमारी वो हेल्प हो जाएगी कि हम अपनी ग्रोथ की जो उसको पेस है उसको हम बढ़ा सकेंगे। तो गवर्नमेंट की बहुत अच्छी स्कीम है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। हमने इसको बड़े पॉजिटिवली लिया है। हमने सोचा कि हमने जो हमारी जो है वो अपनी प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ को बढ़ाएंगे। हम अपने प्लांट को ऑटोमेशन कर रहे हैं, हम इसके ऊपर इसको मॉडर्नाइज कर रहे हैं ताकि हम लोग जो एक इंटरनेशनल लेवल पे हम कम्पीट कर सकें अपने आप को। और इवन दो इसकी हेल्प से हम लोग अपनी जो R&D एक्टिविटी है उनको हम ज़्यादा बढ़ा रहे हैं ताकि हम नए नए से प्रोडक्ट जो है वो हम मार्केट में लॉन्च कर सकें। देखिए, अगर ये सोचें कि 10 करोड़ से कोई कंपनी कोई इनोवेटिव प्रोडक्ट बना लेगी, वो तो शायद पॉसिबल नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट का मतलब ये नहीं है कि आप हमारे इंसेंटिव से ही नया प्रोडक्ट बनाएंगे। गवर्नमेंट सिर्फ ये कह रही है कि हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं। 10 करोड़ से इनोवेटिव प्रोडक्ट नहीं बनेगा, ये तो श्योर है। सी बेसिकली अगर फार्मा कंपनी को ग्रो करना है तो इन्वेस्टमेंट तो हम लोग अपने आप में तो कर ही रहे हैं। ये एक एक्स्ट्रा जस्ट ट्राइंग टू सपोर्ट द हैंड होल्डिंग था। तो मतलब कि आप करो, हम भी आपके साथ हैं, बिकॉज अल्टीमेटली जो टारगेट है वो अगेन वही टू बी द टॉप। तो उस हिसाब से ठीक है, पॉजिटिव तो है। बट यस, जो इंसेंटिव जो डिस्ट्रीब्यूशन की बात आप कर रहे हो, या जो है जिस तरह से कुछ गाइडलाइन चेंज हुई हैं बीच में, पहले तो हमें जैसे बोला गया था कि पहले जो सारी निकल के आया था तो कोई 11.4 के करीब हम लोगों को फर्स्ट ईयर इंसेंटिव मिलेगा। बट गाइडलाइंस बीच में चेंज हुई तो देन इट इज़ रिस्ट्रिक्टेड टू 10 करोड़। तो मतलब अब हम ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट एक बार हर किसी मैन्युफैक्चरर को ऐसा है, हर किसी के लिए यही होता है कि आपको अगर सामने ज़्यादा फिगर दिख रही है तो ऑब्वियसली एवरीवन गो टू बी अचीव दैट फिगर। बट उसके बाद ये कट लगना थोड़ा सा पिंच भी करता है। अल्टीमेटली इन्वेस्टमेंट तो हम लोग कर ही रहे हैं और उस पेस से ही कर रहे हैं, तो इंसेंटिव भी उसी तरह से मिलता रहे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। गाइडलाइंस काफ़ी फ्लेक्सिबल रही हैं इसकी। यस, बीच में हम कह सकते हैं कि क्योंकि पहली बार था ये सारे उनके लिए जो जिन्होंने भी गाइडलाइंस अपने फ्रेम करी थी गवर्नमेंट ने, उनकी पहली बार था। जहाँ उनको जब करते गए आगे बढ़ते गए, कंपनी अपनी इंक्वायरीज रेज करती गई, तो उनको भी वो टाइम टू टाइम अपनी गाइडलाइन चेंज करनी पड़ी, क्योंकि उन्हें हर एक तरीके से देखना था कि कितना इंसेंटिव कब देना। ये ना हो कि अगर पहले ज़्यादा इंसेंटिव जाए, बाद में लास्ट 4 सालों में जाके जो कंपनियों को इसके ऊपर ध्यान ही न दे, इसको ड्रॉप ही कर दे। स्ट्रक्चरली काफ़ी मतलब इन्होंने जो पूरा अगर स्ट्रक्चर था इस स्कीम का, तो गाइडलाइन के अंदर ही ये दिया गया था कि एक PMA यानी कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एजेंसी रहेगी, जो कि सिड भी थी इस पर्टिकुलर केस के अंदर। तो उनको हायर किया गया था, उन्होंने पूरा एक सेटअप क्रिएट किया गया था। ऑनलाइन सारा डिजिटल सिस्टम रहा है, जितने फॉर्म्स, जितने सबमिशन, जो क्वार्टरली डाटा सबमिट करना था, वो सब उसके थ्रू हुआ है, उन्होंने बनाया है। और अब की बार 2 and 4 बहुत रहा, क्योंकि ये फर्स्ट ईयर था, स्कीम का पहला ईयर था, उनके लिए भी नया था, हमारे लिए भी नया था। तो उसके दौरान उन्होंने काफ़ी ज़्यादा कोऑपरेट किया। इसके बीच में इस दौरान काफ़ी मतलब वो चीज़ें भी रही, क्योंकि फर्स्ट टाइम चल रहा था सब कुछ, तो नो डाउट। लेकिन अब शायद सिस्टम सेट है और आगे के लिए जो फर्दर ईयर्स हैं वहाँ पे सिस्टम सही रहेगा। जैसे सबने बताया कि गाइडलाइंस में काफ़ी चेंजेस थे, बहुत सारे चेंजेस एप्लीकेंट के फेवर में भी थे और कुछ फेवर में नहीं भी थे। जैसे पवन सर ने बोला कि 11.40 इंसेंटिव की जगह पे बाद में 10 करोड़ हो गया इंसेंटिव, तो कुछ एक एप्लीकेंट के फेवर में नहीं थी, बट बाद जगह पे उन्होंने एप्लीकेंट को फेवर करने की भी कोशिश की। जैसे बीच में उन्होंने बोला कि अगर आपका 6 मंथ में टारगेट पूरा हो जाता है तो आप 6 मंथ में इंसेंटिव क्लेम कर लीजिए, जो कि पहले फर्स्ट पूरे ईयर ख़त्म होने के बाद। और इवन उन्होंने सजेशंस मांगे हैं। वो इवन डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज के जो सेक्रेटरी थे, उनके साथ सभी सिलेक्टेड जो एप्लीकेंट्स थे उनकी मीटिंग्स रही हैं। जो भी टॉपिक्स रहे हैं उन टॉपिक्स के ऊपर उनको टू एंड फ्रो हुआ है, आपस में इनपुट्स मांगे गए हैं कि हम क्या चेंजेस कर दें जो आपके लिए सही रहें। इवन यहाँ तक बातें हुई हैं। तो एक अच्छा उन्होंने पूरा एनवायरनमेंट बनाने की, इकोसिस्टम बनाने की कोशिश की है। आई थिंक इट इज़ गुड साइन।
कोई भी चेंज करने से पहले जो भी चेंज आता था उसके लिए पहले वो कॉन्फ्रेंस सेमिनार सभी को एक वर्चुअल मीटिंग के दौरान लेते थे और उसमें पूछते थे कि सभी की जो प्रॉब्लम है स्वीकारी, किसी ने जो प्रॉब्लम अपनी उनको बताई होती थी उसके रिगार्डिंग उसका सोल्यूशन बताते थे और उसके बाद ये गाइडलाइंस फ्रेम करी गई है। जब चेंजेस फ्रीक्वेंटली हुई हैं बट जो हुई हैं वो फेवर में ही हुई हैं ज़्यादातर। हाँ, उनका गवर्नमेंट का भी अपना ऑब्जेक्टिव है, जिस ऑब्जेक्टिव से लेके चल रहे हैं उसके लिए हो सकता है हमें पहले शुरुआत में हमें जैसे अब हमारी जैसी कंपनी को मिला हो कि 11 करोड़ 43 लाख मिलना था, 10 करोड़ मिला, पर किसी को भी इसमें बेनिफिट भी हुआ होगा। सर इतना फ्लेक्सिबल अप्रोच इतनी बार अगर वो सबको ही लेके चल रहे हैं साथ में तो बहुत फेवरेबल कंडीशंस होगी ना। ये तो अगर सारी कंपनीज बैठ के अपने अपना फेवर में बता रही हैं तो वो डिसीजन गवर्नमेंट का। हाँ, मैं एक एग्जांपल देता हूँ मैम। इवन एलिजिबल जब आपका सिलेक्शन क्राइटेरियाज जो थे उसमें एक एमए का क्राइटेरिया हमारा डिस्कस हुआ, तो एमएज के अंदर जब इनिशियल गाइडलाइन जो रिलीज हुई थी उन गाइडलाइन के अंदर सिर्फ ANDA थे। ANDA एब्रीवेटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशंस होती हैं एंड दैट इज एप्लीकेबल ओनली इन US। तो फिर फार्मा कंपनीज, कुछ कंपनीज ऐसी थी जो ANDAs अप्लाई ही नहीं करती, वो सिंपल दूसरी कंट्रीज़ के अंदर अपने डोजियर डालते हैं और वो जो मार्केटिंग ऑथराइजेशन होती हैं वो अलग तरीके की होती हैं। तब उन्होंने हमारी बात सुनी और सिलेक्शन क्राइटेरिया के अंदर एडेंडम डाल के गाइडलाइन के अंदर वो इंक्लूड किया गया। बेसिकली ANDAs आएगा जैसे वो US में चलते हैं एंड सी अब जैसे हम लोग EU GMP सर्टिफाइड कंपनी है तो हमारा तो मेजर धंधा यूरोप है, तो यूरोप में ये रजिस्ट्रेशन है, MAs हैं, तो वो सारी चीज़ें तब हमारे वो MAs काउंट हुए यूरोप के और रेस्ट ऑफ वर्ल्ड जो दूसरी कंट्रीज हैं उनके, और उसका क्राइटेरिया शायद 40% का था। यस, दैट क्राइटेरिया सिलेक्शन क्राइटेरिया में उसकी वेटेज 40% की थी। और वो सी मतलब अल्टीमेटली जो हमारी इतने सालों की जो प्रोसेसेस थे, सी रजिस्ट्रेशन किसी प्रोडक्ट का रजिस्ट्रेशन करवाना इट्स नॉट ए इजी जॉब, इट टेक्स टाइम। तो वो वेटेज ऑब्वियसली हमारे लिए इन फेवर हुई और हमने कैश करा। जैसे कि हमने बोला इस पॉलिसी से हमने बहुत कुछ सीखा। MS के केस या इसके ANDA के केस में हम कह रहे हैं कि हमें ये हमारे लिए एक आई ओपनर था। हमने आगे से अपने सिस्टम को वैसे डेवलप कर लिया जैसे कि अपने को इनकी PLI ने सिखाया कि ऐसा होना चाहिए, आपका ये होना चाहिए, उसके हिसाब से हमने इसको डेवलप कर लिया। बहुत सारे बेनिफिट अपने को देखने के मिले, बहुत सारी जो इतनी रेगुलेटरी कंप्लाइंसेस इसमें जो थी वो उन्होंने बताई। हम तो इसके ऊपर कई बार नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में हम लोग इसके ऊपर ध्यान नहीं देते थे, पर उन्होंने हर एक हमारे स्टेशनरी कंप्लाइंस को कवर किया, चाहे वो इनकम टैक्स का हो, चाहे GST का हो, चाहे वो अपना SEBI की गाइडलाइन जो कुछ भी हो, उन्होंने पूरी कंपनी को असेस किया, उसके बेस पे उसको वेरीफाई किया। तो उन चीज़ों को, कई चीज़ों को तो हमने इस दौरान करेक्ट भी किया अपने को कि सारी कुछ चीज़ें हमारे पास थी तो थी, पर हमने कहीं अपलोड नहीं किया था, कहीं कुछ किया था। ये सारी चीज़ें हमने इन चीज़ों को करेक्ट किया और आगे के लिए भी हमारे लिए एक गाइडलाइन बन गई कि हमें ऐसे वर्किंग करनी है। इससे हमारे जो कंपनी, आप सोचिए कि 11 कंपनी, अगर हमारी जैसी कैटेगरी की कंपनियाँ 11 सेलेक्ट हुई तो हिंदुस्तान में कंपनियाँ बहुत सारी हैं, पर हमारी उसकी इमेज बढ़ी, वहाँ पर 11 कंपनी सेलेक्टेड कंपनी, हिंदुस्तान की कंपनी हमारा नाम आया, तो कंपनी के लिए एक रेपुटेशन के लिए बहुत बड़ा बूस्ट मिला। इससे हमारे आने वाले टाइमों में हमारी अपनी जो है वो ब्रांड बिल्डिंग में, अपने को सेल्स बढ़ाने में, जिसमें ये हेल्प करेंगी चीज़ें। सर अभी तक फ्लक्चुएशंस की जैसे हम बात कर रहे हैं गाइडलाइंस में, तो फ्लक्चुएशंस अभी तक भी बहुत देखने को मिली है। जैसे हमने बताया कि वो पहले 11.4 करोड़ था, वो कम हो गया, तो लास्ट मिनट फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा है इसमें। तो अभी तक तो हमने इस पर कोप कर लिया और है, लेकिन ये कंटिन्यू होगा, अभी स्कीम चल रही है, कमिंग ईयर्स में भी सडनली कोई फ्लक्चुएशंस हो सकते हैं। सो अभी ऐसा लगता है मैडम, क्योंकि 2-3 बार ऐसे केसेस बने जहाँ पर चेंजेस आई है गाइडलाइन पर। अब जो गाइडलाइन जो फाइनली आई हैं, हमने देखा कि अक्टूबर के बाद की जो मेनली गाइडलाइंस आई हैं, उसके बाद अब कोई मेजर चेंज नहीं आ रहा। वो आगे के लिए पूरे ना उन्होंने डिफाइन कर दिया है कि जगह पे क्लैरिफिकेशन नहीं थी, डिफाइन नहीं किया उन चीज़ों को, अब डिफाइन कर दिया गया। आपने कब इंसेंटिव फाइल करना है, कैसे करना है, वो सारे प्रोसीजर, उसके बाद क्या प्रोसेस रहेगा, टाइमलाइन क्या रहेगी। पहले फ्लक्चुएशन थी इसमें चीज़ों में कि हर एक किसी, अब हर एक से ऐसे फिक्स कर दिया इन चीज़ों को कि आपने अगर 15 जून तक आपने अप्लाई करना तो 15 जून तक अप्लाई करना है पिछले साल के इंसेंटिव को। उसमें कब आपका क्या होगा वो उसमें अगर मान लिया उसमें वैल्यूर का, तो वैल्यूर की अपॉइंटमेंट की उनकी लिस्ट है हमारे पास है, इन वैल्यूर से आप इसकी वैल्यूएशन करा सकते हो, और चाहे वो प्लांट एंड मशीनरी की करानी हो, बिल्डिंग की करानी हो, किस तरह की करानी हो, या ऑडिटर से आपने क्या सर्टिफाई कराना है, किस तरह का क्या करना है, ये सब कुछ जो है वो अब अच्छी तरह से डिफाइन कर दिया गया उनको। तो हमें लगता नहीं है कि अब इसमें कोई अपने को मेजर चेंज आ सकती है। तो सब प्रोडक्ट्स जैसे हमारे लिस्टेड हैं, उनकी कोई स्पेसिफिक लिमिटेशन है
या कैसे सिलेक्शन रहा प्रोडक्ट्स का हमारे? एक्चुअली प्रोडक्ट्स ऐसा था, हमने जो प्रोडक्ट्स अप्लाई किए उनकी एलिजिबिलिटी के क्राइटेरियाज थे। उन्होंने एक टेक्निकल कमेटी बनाई हुई थी, उस टेक्निकल कमेटी के अंदर नाइपर्स और मतलब जो एक्सपर्ट्स हैं वो लोग थे। तो उन्होंने जो उसमें कैटेगरीज डिफाइन की गई थी गाइडलाइन में, उनके अगेंस्ट उन प्रोडक्ट्स को टेक्निकली मतलब उनको एनालिसिस किया और अल्टीमेटली फिर उनके ऊपर हमें कमेंट्स दिए कि ये प्रोडक्ट आपके एलिजिबल हैं जो इस स्कीम के अंडर आ सकते हैं और ये नहीं आ सकते। ये नहीं आ सकते तो क्यों नहीं आ सकते, वो रीज़न के साथ उन्होंने नोटिफाई किया और एंड में लास्टली 74 प्रोडक्ट्स थे जो हमारे एलिजिबल उसके अंदर कैटेगरी के अंदर क्वालिफाई हुए। इवन तो मैडम आने वाले टाइम में भी हमारे पास क्या है कि गवर्नमेंट ने हमें साल में 2 बार विंडो देती है, अपने को ओपन करती है विंडो कि आप कोई नया प्रोडक्ट और भी कोई इस दौरान ड्यूरिंग द जो जब तक हमारा 27 तक ये एलिजिबल है, इस दौरान 5 बार अपॉर्चुनिटी मिलेगी अपने को। इवन तो साल में 2 बार मिलेगी, पर टोटल हम इस टोटल PLA स्कीम के दौरान हमारे पास है ये मतलब 5 बार ही हम कर सकते हैं। तो कोई नया प्रोडक्ट हम ऐड करते हैं, कोई रिसर्च प्रोडक्ट ऐड करते हैं, कोई नया प्रोडक्ट ऐड करते हैं जिसको गवर्नमेंट जो चाहती है कि जो इसकी गाइडलाइंस में फिट बैठता है, तो हम उसको ऐड कर सकते हैं प्रोडक्ट को। यहाँ पे थोड़ा सा गवर्नमेंट को चाहिए था कि 5 बारी की बजाय, या जो ये मतलब सिर्फ 5 बारी कर सकते हैं, ऐसा ना करके थोड़ा सा गवर्नमेंट हमें मतलब क्योंकि डेवलपिंग कंट्री है, R&Ds बहुत सारी हो रही हैं, तो नए प्रोडक्ट एज पर दी पॉलिसी जो स्कीम्स गाइडलाइंस है उस हिसाब से आ रहे हैं, तो वो ऐड करने का एक मौका मतलब हमें एक्स्ट्रा मिलना चाहिए। एक्चुअली ड्यूरिंग द डिस्कशन ये पॉइंट उठा था, रखा गया था कि ये ज़्यादा टाइम होने चाहिए, लेकिन उनका काउंटर ये था इस पे कि हमें हर बार इनकी एनालिसिस करनी पड़ती है और पूरा जो प्रोसेस है विंडो ओपन करने का वो 3 से 4 महीने का चलता है। तो वो साल में अगर उन्हीं को विंडो मतलब मल्टीपल टाइम अगर दें तो फिर उनको एनालिसिस करने में बड़ी दिक्कत रहेगी। तो इसलिए मतलब उन्होंने 2 टाइम के लिए मतलब वो विंडो दी। हालांकि ये सभी कंपनियां कह रही थी कि ज़्यादा टाइम मिलना चाहिए। अदरवाइज सर प्रोसेस उनका टाइमली, हाँ अदरवाइज तो उनका मतलब जैसे कपूर सर ने बताया कि गाइडलाइंस तो अब फ्रेम्ड आउट हो गई हैं, सारा कुछ हो गया। फर्स्ट ईयर में काफ़ी इवन वो लोग डाटा भी एकदम से इमीडिएटली मांग लेते थे कि आज कोई मेल आती है हमें शॉर्ट नोटिस पे डाटा मांग लेते थे। तो वो कई बार समटाइम इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू प्रोवाइड दैट डाटा, बट समहाउ अभी तक तो मैनेज किया है, कर रहे हैं। बट ये थोड़ा सा मतलब और मे बी वो इसलिए था कि शायद वो पहला फर्स्ट ईयर था, ये लोग फ्रेम कर रहे थे स्कीम्स गाइडलाइंस को मतलब चेंज कर रहे थे या कैसे कर रहे थे। बट यस वो टाइम फ्रेम जो था वो बहुत शॉर्ट रहा बीच में। देखिए आप देखो यहाँ पर भी अपने को एक अपॉर्चुनिटी मिली, जैसे पवन शर्मा जी ने कहा कि बड़े शॉर्ट नोटिस में वो डाटा मांग लेते हैं। अब हमने अपने आप को उतना इक्विप कर लिया, हम अपने लिए तैयारी कर ली, हमें ये भी एक अपॉर्चुनिटी मिल गई अपने को कि जिस तरह से डाटा उनको चाहिए, ये तो एक ही गवर्नमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी कोई और भी मांग सकती है हमारे लिए। तो हमने अपने आप को जो सिस्टम है उस तरह से डेवलप कर लिए, अपने इंफ्रा को उस तरह से डेवलप कर लिया कि हम डाटा जब कोई चाहे तो हम उनको डाटा दे सकें। कई बार ऐसा होता था कि डाटा आज मेल आई और कल शाम तक आपको डाटा देना है। बहुत सारा डाटा हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल होता था, लेकिन उस फॉर्मेट में जिस फॉर्मेट में उनको चाहिए। तो जैसे सर ने बोला कि कहीं ना कहीं हमें वो सिस्टम को डेवलप करने का मौका मिला कि गवर्नमेंट की क्या एक्सपेक्टेशन है कि आपका डाटा किस तरीके का होना चाहिए और बिल्कुल रेडी फॉर्मेट में होना चाहिए कि आज अगर आपके पास मेल आ रही है तो विद इन फ्यू आवर्स आप वो डाटा गवर्नमेंट को प्रोवाइड कर सकें। तो कहीं ना कहीं हमें अपने सिस्टम को अपग्रेड करने का और गवर्नमेंट की एक्सपेक्टेशन के हिसाब से उन्हें और डेवलप करने का हमें यहाँ चांस मिला। तो एक तरह से चैलेंजिंग रहा है ये प्रोसेस। तो सर हम अगर बेसिक क्वेश्चन पे चले जाएं कि वाज दिस एंटायर स्कीम वर्थ द इन्वेस्टमेंट, या इट वाज इट इवन वर्थ इट टू डू सो मच एफर्ट्स, व्हाट वाज द कॉस्ट ऑफ कंप्लायंस टुवर्ड्स दिस स्कीम? और डेफिनेटली मैडम इस स्कीम ने हमें काफ़ी सारा मतलब जो है वो बहुत कुछ सिखाया है और बहुत कुछ दिया है। हम चाहे कुछ भी बोलें, हमारे लिए हेल्प तो अगर बाहर से कुछ भी आती है, अपने एफर्ट्स को कितने भी करें हम लोग, बाहर से हेल्प हमें कुछ भी आ जाती है ना, वो हमारे लिए एक एडिशनली होती है, वो हमें बेनिफिट देती रहती है। कि गवर्नमेंट ने एक सोचा, अच्छा है करा कि पूरी कंट्री के लिए कि हम एक आत्मनिर्भर भारत का निर्माण कर सकें, इसलिए ये स्कीम बहुत ज़रूरी थी। हमारे लिए भी अपॉर्चुनिटी मिली। इसके अलावा मतलब एक फार्मा सेक्टर का तो हम बैठे हैं, हम अपनी बात कर रहे हैं, इवन तो बाकी सेक्टरों को भी इस PLI स्कीम के दौरान 14-15 सेक्टर और उन्होंने इसमें कवर कर रखे, उनको भी इसमें हेल्प मिल रही है।
और हमें हेल्प इसलिए मिली है कि हमें, क्योंकि हिंदुस्तान को एक जेनरिक फार्मेसी, जैसे मुकेश जी ने कहा कि एक जेनरिक फार्मेसी पूरे वर्ल्ड में, इसको वर्ल्ड फार्मेसी का नाम मिल गया था, तो हिंदुस्तान में वही उसी नाम को और आगे बढ़ाना चाहते हैं ताकि हम कम्प्लेक्स जेनरिक और कुछ जो स्पेशल प्रोडक्ट हैं, जो रिसर्च प्रोडक्ट हैं, उनको हम प्रमोट कर सकें। तो इससे मतलब मोटिवेट होकर स्कीम को हमने करते हुए हमने अपने जो R&D के लिए, आप जान सकते हैं, हमने एक अपना ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट लगा रहे हैं वहाँ पर TBC दफ्तर में, जहाँ पर हमारे अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग थी, वहाँ पर हम ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर हमारे सारे इनोवेटिव प्रोडक्ट जो है वो वहाँ पर बनेंगे। तो ये गवर्नमेंट की स्कीम की हेल्प की वजह से हो सका है। कुछ फंडिंग हम कर रहे हैं, कुछ गवर्नमेंट फंडिंग का हम लोग यूटिलाइज करेंगे जिसके लिए, तो आगे हम लोग अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट हम दे पाएंगे। बियॉन्ड दिस गुडविल भी बहुत है। Yes. अगर हम एक गवर्नमेंट की स्कीम के अंदर सारी कंप्लायंस करके अगर वहाँ पे सिलेक्ट हो रहे हैं और इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं एक R&D के अंदर, जो जैसे सर बता रहे हैं कि नई R&D सेंटर कर रहे हैं, बना रहे हैं, तो ये एक बड़ी चीज़ है हमारे सेगमेंट के कंपनी के लिए, तो कम से कम बहुत बड़ी चीज़ है। जहाँ कहीं मतलब हमारा वो कहते हैं ना कि हमारे हाथ रुके हुए थे, या जैसे विंग्स मतलब हमें वो से उड़ने, मतलब हमने फ्लाई करना था, तो ये डेफिनेटली दिस स्कीम्स विल हेल्प अस। रेपुटेशन वाइज फाइनेंशियली स्कीम ने सपोर्ट किया है, सिस्टम अपग्रेड करने में हमें हेल्प की है। तो अगर आप देखें तो बहुत तरीके से स्कीम ने हमें हेल्प किया है, तो ये डेफिनेटली वर्थ है। आप जानते हैं मैडम कि फार्मा कंपनी में रहते हुए बहुत सारी सबसे रेगुलेटरी कंप्लाइंट सेक्टर है ये फार्मा सेक्टर, और इस स्कीम के तहत हमने जब भी हमें ये किया था, हमने जैसे आपको बोला कि हमने ऑटोमेशन के ऊपर पैसा खर्च किया, मॉडर्नाइजेशन के ऊपर खर्च किया। ये जब सब पैसा खर्च किया तो ना सिर्फ हमें इसमें मतलब प्रोडक्शन को, कैपेसिटी को बढ़ाने में हेल्प मिली है, बट जो रेगुलेटरी कंप्लायंस है, जैसे GMP है, हमारे कई GMP ऑडिट्स होते हैं, उनमें जब ये सब चीज़ें बनी बनाई मतलब हम इसके ऊपर फोकस कर रहे हैं तो इनमें हमें इन कंप्लायंस को करने में और मदद मिल रही है। हम और कंट्री में जाके अपने बिजनेस जो है वो बढ़ा सकते हैं। जैसे कि आप सारे जानते हैं कि फार्मा जो सेक्टर है ये सबसे ज़्यादा मतलब रेगुलेटरी कंप्लाइंट सेक्टर है। हमें ना सिर्फ मतलब इसके अलावा बाकी कंपनी की तरह हमें देखना पड़ता है, पर हमारे जैसे GMP मिलते हैं अपने को, तो हमने ये जो पैसे, जैसे मुकेश जी ने कहा है कि हमने जो पैसा इन्वेस्ट किया है वो हमने प्लांट को ऑटोमेशन के ऊपर और मॉडर्नाइजेशन के ऊपर पैसा खर्च किया है। तो ये इससे ना सिर्फ अपने को मतलब प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाने में इसमें हेल्प मिली है, बट जो रेगुलेटरी कंप्लाइंस जैसे GMP वगैरह की जो कंप्लाइंस करनी होती है उसमें हमें इसमें हेल्प मिली है कि वो ऑडिट के लिए हमें कोई कुछ ऐसा करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ हमारा सारा ऑटोमेटेड सिस्टम पे है, और जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो उसमें हमने PLI स्कीम ने ये किया है। R&D के लिए मोटिवेट होकर हमने देखा कि R&D के लिए हमारा R&D सेंटर ऑलरेडी बद्दी में था, हम एक और ग्रीन फील्ड R&D प्रोजेक्ट लगा रहे हैं TBC दफ्तर में। वहाँ पर हमारे जो है वो सारे मतलब जो इनोवेटिव प्रोडक्ट है वो वहाँ पर बनेंगे। तो नो डाउट हमें कोई इसमें ये दोहराई नहीं है कि PLI स्कीम ने जो है वो हमें ज़्यादा मोटिवेट किया है, उसने हेल्प किया हमें उसमें कि हम अपने ज़्यादा से ज़्यादा जो R&D के ऊपर अपने कैपेसिटीज़ के ऊपर हम जो है वो खर्चा करें, और हमने किया है। तो इसका पर्पज़ यही था कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाएं और हम ज़्यादा से ज़्यादा नई R&D करें, नए प्रोडक्ट लॉन्च करें, ताकि हम एक जेनरिक फार्मेसी का हिंदुस्तान का नाम बना हुआ था वो एक रिसर्च और इसके अलावा कम्प्लेक्स जेनरिक वगैरह के लिए भी हमारा हुआ दुनिया में हमारा नाम है। Okay, thank you so much, sir. So what I've gathered is even though the process was quite challenging for us and we put in a lot of efforts in that, and ultimately it was all worth it, right? But our journey does not end here. The process is it is just the beginning, and the process, there are still more years to come, and there's still much ground to cover, and we are excited about to see our progress in the coming years. And we'll definitely circle back with the panelists and assess our development and progress in this PLI scheme in the future. Thank you so much. Thank you.